इधर जो भी टीम जो भी बोलेगा उसको कितना नंबर देना है, तो 1 से 5 के बीच नंबर रहेगा, उसमें से उसको दिया जाएगा। अगर किसी को आपत्ति होगा कि नहीं सर वो नंबर क्यों दिया गया, तो हाथ उठा के बोलेंगे, ठीक। बाकी मैं नंबर मार्किंग अपनी तरफ से कर दूंगा, ना इधर का बात ना उधर का बात। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर इतना नहीं है, सेंटेंस या ये बात गलत बोल रहा है, इसलिए नंबर कटना चाहिए, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। डिबेट देखे हैं ना, ठीक। मछली बाजार नहीं बनाना है, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। सॉरी राजेश जी से नहीं, वही शुरू कीजिए ना। First of all, good morning everyone. Sir, respected sir and my all friends. Today I am talking about criminalization. Is it dangerous for politics? Yes or not? First of all, give my point in positive way or negative way, both of them. A very well poet said that politics is a refuge of scandals. It means he clearly said that the politics is that type of not any chance or any revenue we have to take in. Okay. Now first of all, in democracy, two things happen. That what's democracy is given by Abraham Lincoln, said that by the people, of the people, for the people. But now I am talking about, first of all, in the world history. I normally think about that. In French Revolution, you have to see that total monarchy system at the starting democracy system in total is 360 rotation in the French Revolution. You have to saw that. In French Revolution, Louis XIV, on that time, monarchy system was established. But after some time, democracy has been established. But in the time of Napoleon Bonaparte, again monarchy has been established. So I would like to compare in the criminalization. In criminalization, the power of criminal used only for all things, not for the people, not for the any government's advices. Take that. Now, one thing more, according to ADR report, in Bihar, 32 people out of 32 people, 23 people in 32 are corrupted and belong to criminals background. Now I am also talking about the census index report in 2004. 32%, 24 to 26% are the participation of in Lok Sabha are the criminals background. In 2009, 34%. In day to day yearly increases the percentage of criminalization in the Lok Sabha of the Parliament. If anyone belongs to criminal background, we have also to thought that his vote earned by your threatening or gives the money for the votes. On that type of votes not useful for the public and the governments. Now I am also talking about in India, in our country, our constitutions are divided into 3 levels. In central level, state level, and third one is the Panchayati Raj system. Now I am talking about Panchayati Raj system. If anyone stand up for the leadership like the Mukhiya, Sarpanch, anything, I have to show that in my view, according to my view, I have to show that how to earn his vote. He gives the liquor, gives the non-veg parties. After ये भी सीखने की प्रक्रिया है, क्योंकि आपका विवादन जब तक कोई सुनेगा नहीं, वो स्वीकार नहीं करेगा। सुनना चाहिए, कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है, ठीक। चलिए 1 2 3 4 5 6 अब आते हैं ग्रुप सी की तरफ। सब ठीक, क्योंकि जानते हैं आप लोग बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, कम इसी आधार पर कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने कोशिश किया, कोशिश करना जरूरी है ना। जीतना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कोशिश करना उद्देश्य होना चाहिए। और आप डर क्यों नहीं? लीडर हमेशा अच्छा। आप देखें हमारे देश में कितनी IPS ऑफिसर हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं, DSP हैं, फिर आप क्यों डर रहे हैं? छोड़ दीजिए, हो गया, शुरू करते करिए ना। नहीं चलिए, हाँ बोलिए। Good morning, sir, and good morning all of you.
बोलिए। कुछ तो बोलिए, डर रही हैं। हाँ तो एक मन में सोचिए कि आप इसके कारण सिलेक्शन आपका नहीं होगा। हाँ तो आप देख के बोलिए, कोई बात नहीं। हाथ तक कांप रहा है ना, ये नॉर्मल सा फीलिंग है जो होता है सब लोग। राजनीति में अपराधीकरण जो राजनेताएं आते हैं उनकी वजह से लोकतंत्र को कैसे मतलब हानि पहुंच रहा है, उसके संदर्भ में बात उसके कर संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक। राजनीतिक में अपराधीकरण का अर्थ है कि राजनीतिक में जैसे कि संसद हो गया, फिर राज्यसभा लोकसभा के जो भी सदस्य हुए उनके मतलब सदस्यों के रूप में आपराधिक लोगों का मतलब परिवेश जो होता है, इसके कारण मतलब हाँ उसी को आप राजनीतिक अपराधीकरण करते हैं। ठीक, आगे। हाँ इसके द्वारा लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोगों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि लोगों के लिए उनके राष्ट्र के लिए कार्य करे और लोगों के मतलब हित में कार्य करे। लेकिन आज के जितने भी राजनेताएं हैं वो लोगों के लिए कार्य ना करके खुद के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हैं। जैसे कि भारत जैसे देश में जहाँ पे जो वोट होता है वो ज्यादातर धर्म और जाति के हिसाब से होता है। तो ऐसे में अपराधियों का झुकाव राजनीति की तरफ होने लगा। ठीक है, बोलिए आप। कुछ और बोलिए। नहीं बोल पाएंगे? ठीक है, बहुत अच्छा। एक नंबर कोशिश करने के लिए और आधा नंबर बोलने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप बोले और सही ही बोले, जरूरी है कि अपने डर से तो पहले लड़ें। आपने इतना दिन पता है घबराहट ये व्यक्ति को होता है कि हम सबसे अच्छा कैसे बोल पाए, और उस चक्कर में जो जानता है वो भी नहीं बोल पाता है। दूसरी बात व्यक्ति को लगता है कि हम आज तक नहीं बोले हैं कहीं, आज पहली बार कैसे बोल पाए। तो हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं पहला बार शुरुआत करता है, करते हैं ना। नहीं शुरुआत करेंगे तो कैसे होगा? पढ़ने से सिविल सर्विस से पास नहीं हो सकता इंसान। ओवरऑल पर्सनालिटी आपको सिविल सर्वेंट बनाएगी, नहीं तो सिविल एस्पिरेंट बन के रह जाएंगे। दोनों में अंतर समझते हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट। लीडर का काम हुआ कि उनको उठाया जाए। ठीक, तो चलिए 20 सेकंड अभिषेक से शुरू होगा। Good morning to all of you. Myself Abhishek, and today's topic is how criminalization is dangerous for democracy. Sir, criminalization is a evil or curse we can say on our democracy. And yes, we live in a democratic country where we have some fundamental rights, but and few policies which government can make for our benefit. But with this enlightenment of criminalization in our democracy, it is not possible for them to make good policies and laws which are in favor of us. And second point, I would like to discuss that criminalization can lead to a very drastic disease that we, like cancer, we can call corruption. And it has started gradually from after our independence. Few years were really in favor of us, but after that many leaders from criminal background came across and they have just corrupted the government. Next point, sir, I would like to discuss that criminalization can also give rise to nepotism, like servants war, we can say in Hindi. Like few parties in India that favors, like one of the earliest to most major parties, that is Congress, it was favoring just their own family members.
or related to them. So this can be also cause of criminalization in our democracy, and this is very dangerous for us. And next point I would like to discuss, sir, our most fundamental right is to right to vote, and for democracy. And sir, if very few areas in our country have such system that there is a loot of EVM machines or ballot papers loot. So this is also a case of criminalization in our democracy. That is now, sir, very few leaders, no, most of the leaders favor caste politics. This is also a criminalization type of thing. And sir, we the people of India, we all know that our leaders or our government is of which type, that is criminal minded type. But still we respect them, still we give everything to them. But sir, it's very shame on us. So Supreme Court has also decided that not where people filed a PIL against these all corruptions. Then Supreme Court has decided that some measures that I will discuss later. I would like to discuss few data that in ADR has given that in our Lok Sabha 43% members have a criminal background, and approx 29% members have harsh criminal cases on them like rape, murder, kidnapping, etc. So sir, and best example I would like to give of that government or that criminalization mindset type of government is in our Bihar. The time when Chara Ghotala, Railway Ghotala done by our ex-Chief Minister Lalu Yadav. So, and still something is going on which we will see in future that. And sir, so lastly I would like to conclude that few measures. गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है मेरा कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ने के कारण। सबसे पहले देखा जाए कि राजनीति होता क्या है। राजनीति दो शब्द से मिलकर दो समूह से बना है। राजनीति यानी राज का मतलब कि शासन करना, नीति का मतलब कि नियम कानून बनाना, या दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारने का राजनीति कहलाता है। देखा जाए तो सबसे पहले कि जब हम आजाद हुए थे तो उस समय गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या था कि जब हमारे देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत के सभी नेताओं ने गांधी जी के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लिया था। लेकिन आज के इस देश में इसका विपरीत होते जा रहा है। सबसे पहले देखा जाए कि राजनीति आपराधिक मामले, भारतीय राजनीतिक आपराधिक मामले में तीव्र गति से बढ़ते हुए जा रहा है। ऐसे मेरा मानना है कि ये अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। देश के समस्त नागरिकों को चाहिए कि वह आत्माकलन करे और प्रयास करे कि जो नैतिक मूल्य खो चुके हैं उसे पुनः ला सके। देश में सभी और कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, सांप्रदायिकता का जहर फैल रहा है। एक सामान्य कर्मचारी से लेकर शीर्ष नेताओं तक भ्रष्टाचार संबंधी आरोप समय पर लगते रहे हैं। देश की राजनीति में अपराधीकरण दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और देखा जाए तो कुर्सी अथवा पद की लालच में मनुष्य अपनी नैतिकता को खो चुके हैं। लेकिन भारत की राजनीति में आपराधिक तत्व का प्रवेश एक दिन में नहीं बढ़ा है। स्वतंत्र के बाद जिस तरह कुर्सी के लिए संघर्ष आरंभ हुआ है, सभी दल अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए गांधी जी के स्वप्न को खो चुके हैं। उसने राजनीति एवं अपराध के गठजोड़ को बनाने के लिए अग्रिम भूमिका निभाई है। जातिवाद को मिटाने के नाम पर वो भी इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिए हैं। अतः मेरा मानना है कि बढ़ते हुए राजनीतिक अपराधी खोजने डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। हम लोग इसके लिए नहीं खेले, अच्छा लगा ना, बोल के थोड़ा सा एहसास ठीक लगा। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजनीतिक अपराधीकरण में लोकतंत्र अगर वर्तमान में देखे जाए तो राजनीति के कई ऐसे डिफिनेशन है जो हर क्षेत्र में हर मामले में एक ही है। लेकिन अगर लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसका मामला अलग है। जैसे कि अभी राजनीतिक में देखा जाए तो अपराधियों का आवागमन, चुनाव लड़ते हैं लेकिन जीत जाते हैं, सांसद या विधानमंडल में उनका आसानी से सीट भी मिल जाता है। ऐसे उनके जीतने के पीछे बहुत रीजन है। इसका अगर हम राजनीति पर प्रभाव जाने तो आगे आने वाले पीढ़ियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव यह पड़ेगा कि कहीं न कहीं
उनके बेटे, उनके जो जितने भी मतलब वंशागणत है, मतलब वंश जो है वही इस राजनीति में पनपेंगे, कहीं ना कहीं उनसे सीख करेंगे, कहीं ना कहीं उनसे अपराधी करके ही राजनीति में प्रवेश करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देश को प्रभावित राजनीति के संदर्भ में करता है। हमारे एक महान व्यक्ति का तर्क यह है कि अगर किसी देश का राजनीति और आर्थिक स्थिति अच्छा तो वो कहीं ना कहीं विकसित कर जाएगा। जैसे तो उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे। अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अपराधियों के अगर आवागमन के संदर्भ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका देश पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि को चुनते हैं क्योंकि वो हमारा संरक्षण दे, सुरक्षा दे और कहीं जीवन यापन के लिए अच्छी सुविधा याचिका दायर करे और कानून ऐसा बना है जो कहीं ना कहीं हम लोग के अनुरूप हो, अनुकूल हो और हमारे समरूप हो। लेकिन कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें सांसद अपने शक्ति का मनमानी ढंग से प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में 2017 के चुनाव में जयललिता के मरणोपरांत के बाद उनकी जो एक सहपाठी थी, मतलब सहेली बोल सकते हैं, उनके पद के लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था कि आप पे अपराध ज़्यादा है। तो उनको इलेक्शन कमीशन ने AITMDA के पद जो अध्यक्ष होते हैं उनसे उनको हटा दिया। कहीं ना कहीं वो उसके अनुरूप थे लेकिन अपराध से जुड़े हुए थे। कहीं उनके मतलब बैंक जो बैंक अकाउंट थे उनके सीज कर दिए गए और कहीं ना कहीं उनके अपराधी के मामले में दायरे में सांसद और ADR के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 43% सांसद पे 43% सांसद पे अपराध मामला दर्ज है। उच्च न्यायालय का कहना है कि अगर एक उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि अगर ये दायरा अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आगे चल करके हमारे देश को बहुत प्रभावित कर सकता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है लोकतंत्र के लिए और राजनीति के लिए। आपने अभिवादन से शुरुआत नहीं किया? अभिवादन किया, अभिवादन किए थे। किसी को ऑब्जेक्शन? कॉन्फिडेंस नहीं था, इसका 1 नंबर घटा। बहुत सारा था तो आपने नहीं बोला, उसका घटा। तो जो कम से कम जितना भी दिए हैं आपको टॉपिक कर के अनुसार तो दिए। हाँ, प्लस कर के अनुसार से देने से नहीं होता है। बोलने का तरीका, लैंग्वेज, मेथड भी काम करता है या नहीं करता है? आप तो खुद ही घबरा रहे थे बोलने के समय। सर वो बात नहीं है, मतलब हम आपके खिलाफ जाएंगे आपको बताएं जितना अच्छा से बोले आपको कर के अनुसार इदारे जिसमें वे चुनाव लड़ सकते हैं और संसद के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं। राजनीति में अपराधीकरण बढ़ने के कारण, अपराधियों के पास अधिक पैसा और बाहुबल होने के कारण वे चुनावी राजनीति के मतदान हासिल करने में सक्षम होते हैं। भारत जैसे देशों में अधिकांशतः चुनावी राजनीति धर्म और जाति पर आधारित होती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के पास अधिक पैसा होने के कारण चुनावी अभियान में अधिक से अधिक पैसा खर्च के लिए चुनाव जीत जाते हैं और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले क्योंकि भारत जैसे देश में ही संसद ही का निर्माण करती है और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार संसद के सदस्य होते हैं, जिसके कारण वे लोगों के हित के लिए विधि न बनाकर स्वयं के लिए विधि बनाएंगे, जिसके कारण लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास उठ जाएगा। आपराधिक उम्मीदवार को लेकर रोक लगाने के लिए कानून ढांचे मजबूत होने चाहिए, जो मजबूत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग ही विधि बनाते हैं और ये अपने फायदे के लिए मजबूत ढांचे नहीं बना रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खराब साबित हो सकता है। इसके लिए आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को मतदान करें। अच्छा था ना, कॉन्फिडेंस था, चेहरा पर कोई इधर उधर नहीं गया। आप लोग से लड़ने वाले व्यक्ति पहले चेहरा को सीधा करना सीखिए। ये सीधा होता है, ये आंख सीधा कैसे पता चलेगा? मुंह से नहीं, आंख से।
आपका कनेक्टिविटी आई टू आई कंटेंट क्यों बोला जाता है? इसलिए ना बोला जाता है। सीखें कभी? हाँ, तो आप सिखाएंगे ना। चलिए, इनके ग्रुप के हिसाब से इनको 3 नंबर दिया गया, क्योंकि ये बेस्ट की ग्रुप। आप मानते हैं कि थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, कि हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई प्रयास कर रहा है उस ग्रुप में, उसको ढाढ़स देना बनता है ना। ऐसे भी इनके इतना ढाढ़स से कुछ होने वाला नहीं। ठीक, कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, 2 लोग और। चलिए, समझे, खड़ा होना जरूरी है। आकाश बंदे नहीं होता है कि बंद कर नहीं रहे थे, नहीं बंदे नहीं होता है इनका, ऐसी रहता है। चलिए, हिम्मत दे रही है, तुम खुद हिम्मत दे रहा हूँ। नमस्ते सर एंड नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है राजनीति में अपराधीकरण पर लोकतंत्र किस तरह खतरनाक साबित हो रहा है। इसी से हम लिंक करते हुए इसे बताते हैं किस तरह एक स्वस्थ लोकतंत्र जो है घातक साबित हो रहा है। तो इससे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं ये क्या होता है। तो इसका अर्थ है राजनीतिक में अपराधीकरण जो है, अपराधी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अपराधी लोग शामिल हो रहे हैं और इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी को रोकते हुए और इस अपराधीकरण का जो कारण है कि लोग बाहुबल या धन से, मतलब बल के आधार पर या धन के आधार पर उपयोग करके लोगों को चुनाव के लिए लड़ने बोलते हैं। या फिर हाल ही में इलाहाबाद के हाईकोर्ट में हाल ही में यह मुद्दा निकाला गया है कि जो लोकतंत्र में लोग, मतलब राजनीति में जो अपराधी लोग शामिल हो रहे हैं उसका रोक लगाया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2020 में थोड़ा सा बात कर दें। हाँ, करिए। उधर से नंबर जो मतलब दिए वो मतलब उस ग्रुप को नंबर दिए, देखिए आप बताते हैं। सर मतलब थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि सर हाँ, ठीक है, बता देते हैं। हमको आप ये बताते हैं कि इसमें से जितना तो बोला है उसमें कितना का तर्क दिया है और कितना बोलने से पहले सुनिए, बैठे पहले बताते हैं। तार्किक बात ये मेरे पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि नंबर हम नहीं दिए। अब वो बताएंगे कि क्यों नंबर इनको 1.5 नंबर दिया, क्यों उनसे 1 नंबर दिया। हाँ, बताइए। इनका कॉन्फिडेंस उनसे ज्यादा अच्छा है। हाँ, देखिए कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि बीच में टॉपिक के पॉइंट पे नहीं, तो बीच में आकर उतना क्वेश्चन बैठे सुनिए। हर चीज का तार्किक विश्लेषण करेगा तो उसका सकारात्मक नकारात्मक दोनों निष्कर्ष निकलेगा। पहली बात है लास्ट बात, कॉपी से देख के बोले ना 70-30 का रेशियो था ना, 70-30 का रेशियो था, 70-30 के रेशियो से बाहर बोले ना, करा ना। देखिए, अगर जीतने के लिए खाली खेलिएगा तो सीख नहीं पाइए। अगर सीखना है तो जीत से ऊपर अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए सोचिए। क्या वो आधा नंबर से जीते हैं, कोई ज्यादा नंबर से तो नहीं जीते हैं। और चूंकि न्यूट्रलिटी जरूरी है, इसलिए उनको रखा गया ताकि आपको ये न लगे कि यहाँ नंबर ज्यादा और यहाँ नंबर कम। एक व्यक्ति अपने आधार पर तार्किक विश्लेषण करता है ना। जैसे आपको नंबर देने के लिए दे दे, चलिए, तो आप क्या करिए, एक पॉइंट सोचिए, उस पॉइंट के आधार पर किसी को बोलिएगा। हो सकता है उस पॉइंट से अगला आदमी को सही नहीं लग रहा, लेकिन इसके आधार पर जीत हासिल करता नहीं ना होगा। और अच्छा बात है कि हम लोग सब मिलकर खेल रहे हैं और सब मिलकर इम्प्रूव कर रहे हैं। कदम तार्किक रूप से आप पूछे तो जरूर क्या इम्प्रूवमेंट है, ठीक। और कोई दोस्त? हाँ, ठीक है। तो एक बार टीम के लिए ताली बजा दीजिए। क्रिकेट का मैदान देखते हैं, जब जीतता है प्लेयर तक का मुंह घुमा के चला जाता है, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यही खेल भावना और यही ज्ञान का भावना, ठीक है। बहुत अच्छा। तो कितना टीम में है आप लोग? 3 2 5 3 8। हाँ, आइए लीडर के साथ फोटो लो। हाँ, लेकिन चॉकलेट सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है। सब साथ में हम ले रहे हैं, आप सबको दे दीजिएगा, ठीक है। जाइए जाइए जाइए।